So, good evening, everyone. I welcome you all for today's webinar on quality paper uh, writing and a research report on innovation, uh, organized by Institution Innovation Council of NIT Polytechnic Nagpur. Before starting with today's webinar, I, on behalf of NIT Polytechnic, welcome today's guest, uh, Dr. Amol Deshmukh, sir. Sir is presently working as principal at Nagpur Institute of Technology, Nagpur. He did his PhD in electronics engineering from VNIT Nagpur in 2010. Earlier, he has worked as deputy director at GS Raisoni College of Engineering and Autonomous Institute for 18 years. He has received most distinguished principal of the year award by Education Excellence, Outstanding Faculty Member Award by Novel Research Academy, and Best Principal Award from Institute of Scholar, Bangalore, and also got Best Teacher Award at GS Raisoni College of Engineering. He has also worked as coordinator and nodal officer finance for World Bank Assistant Project, uh, costing 15 crore. He has 2 patents and 1 copyright in his name. He has, to his credit, around 150 international conference and journals, published 4 books and 5 book chapters. He has received research grant of rupees 7.37 lakh from AICT under research promotion scheme. 7 researchers scholar completed PhD under his guidance. He also worked as international co-chair for International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology for 5 years. So let us welcome to our guest speaker, Dr. Amol Deshmukh, sir. As sir will start the today's session, before that I request Sirbate sir to please say a few words on today's topic. Hello. Good evening to all. Good evening, sir. Good evening, sir. It's a very highly, I feel delighted to be with my dynamic colleagues, my younger brother, Amol Deshmukh, who is really by heart, by bone, by everything from top to bottom, a teacher. And not only teacher, he had excelled in his field, the research field particularly. And we wish that his drops of knowledge should percolate our students, our faculty, so that they should be enlightened and should take some lesson from him and do something in the research field. At least start with writing a paper. So how to write a paper correctly, dynamically, and very nicely, systematically, so that the paper can reach to a Scopus index. So for that, we really required a guru. Guru is required. Guru bagair hota nahi hai. So today he will be your guru and he will deliver in the form of guru, and we will receive him as in the form of his students, pupils, and हम ग्रहण करेंगे और उसको एश्योर करते हैं अमोल देशमुख को कि सर हम डेफिनेटली अच्छा ही करेंगे और आपका नाम और ऊंचा करेंगे. Thank you, sir. And now I handed over the session to Fale to request sir to start it. So I now request all of you to give your full attention to Dr. Amol Deshmukh, sir, as he will deliver his expert talk on today's topic, that is quality paper writing and research report on innovation. So Dr. Amol Deshmukh, sir, please continue your session. Please, sir. Thank you so much. Thank you so much, Fale, sir. Well, at the outset, let me thank NIT Polytechnic and Potbare sir, Principal NIT Polytechnic, Sirbate sir, all the faculty members. We are there. Sirbate sir is my guru, mentor, and we have been associated with so many years. And then sir said that why not to arrange a talk. I said anytime we can discuss, we can talk on this particular issue. Okay. So before starting, I'll request all the participants, students to kindly be muted
we will be proceeding further. I'll request Fale sir to please make me co-host so that I can share my. I think I can share right now also. Okay, it is there. So I'll share my PowerPoint presentation, and it will be in a mixed mode. So just let me know whether it is visible or not. Okay. So is it visible now? Hello, can anybody confirm? No, sir. Hello? No, sir. No. Not visible, sir. No, sir. Yes, sir, visible. Yes, sir. Yes, sir, visible. I have shared it. Visible. It is visible now? Okay. Thank you so much. So if you look at for the topic, Not audible, sir. हेलो पाले सर, Yes, sir. वॉइस बंद हो गया है. Sir has left the meeting. Due to some I think, technical- hello. Am I audible? Yes, sir. No. Yes, sir. Yes, sir. So is it visible now? Hello? Not, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is visible now. Hello? Yes, sir. Hello? Yes, It is sir. visible? Okay, Yes, I sir. think Yes, sir. I think It is that visible some kind of technical issue was there. Okay. So let me start with this note that quality paper writing is a difficult task, but nonetheless it can be achieved if we make it a system. The things. So, we will be. I have divided this session into to the major focus will be on how to write a quality paper so that it gets selected. So हमें इस तरीके से पेपर लिखना है कि हमारा कहीं पे भी हो, जर्नल कॉन्फ्रेंस जहाँ पे भी हम प्रेजेंट करेंगे, और मोर और लेस ये जो गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस वैलिड रिपोर्ट लिखते हैं, सेमिनार रिपोर्ट लिखते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते हैं, उसमें भी ये काफी मतलब इसी तरीके से हमको लिखना है. सो एंड वी विल सी हाउ टू मेक द थिंग्स टू बी इनोवेटिव. ओके, सो आई एम चेंजिंग द स्लाइड. स्लाइड चेंज हो गई है क्या? कोई प्लीज कंफर्म कर देना मुझे. Yes, sir. Yeah, okay. So as people say, from the note taking to publishing to teaching, language is the tool, that gives sense to scientific activity. तो लिखना चाहते हैं, अब हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें. सबसे पहले तो मैं ये काफी भारी वर्ड लगता है वैसे देखने में, ओके, बट अगर हम इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझे और इसके ऊपर काम करें, तो लोगों को जो है, सबसे पहले तो हमें रिसर्च क्या है वो समझना पड़ेगा.
हम किसी भी चीज पे काम कर रहे हैं, नया कुछ तो टेक्निकल इनोवेशन कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, या हम हमारे व्यूज जो है पब्लिश कर रहे हैं, तो रिसर्च पेपर लिखना काइंड ऑफ टू काइंड ऑफ पेपर्स आर देयर। एक होता है रिव्यू पेपर, जिसमें आपने बहुत सारे पेपर नई टेक्नोलॉजी पे कुछ आपने बहुत सारा टेक्निकल मटेरियल आपने रिव्यू किया, जमा किया, उसके ऊपर उसको स्टडी किया, उसका अभ्यास किया, और उसके बाद में वो नए टेक्नोलॉजी में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइड है, इसके ऊपर आपके विचार आप व्यक्त कर रहे हैं, है ना। सो दैट इज काइंड ऑफ ए रिव्यू पेपर, which is but obvious that it is easy to write a review paper के ऊपर 10, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई 10 पेपर आपने डाउनलोड किए, जमा किए, और 10 पेपर के ऊपर आपने आपका स्टडी किया, और उसमें एक पेपर के ऑथर ने क्या अच्छा लिखा है, दूसरे पेपर के ऑथर ने क्या अच्छा लिखा है, इसका वे ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, दूसरे का एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, इस तरीके से आपने उसके ऊपर स्टडी किया और स्टडी करा कि ये पेपर जो है इसमें इस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन किया है, लेकिन इसको अगर थोड़े अलग तरीके से किया जाता तो शायद रिजल्ट्स कुछ अच्छे आ सकते थे। फिर आपने दूसरा पेपर लिया, दूसरे पेपर में आपने ये पाया कि इसमें थोड़ा सा मेथड है ना, so there is a different kind of methodology which you have observed. Okay, the software being used, it is different, or the process is different. So likewise you can you can study say 10 to 15 good papers of your related area. उसके बाद में आपको ऐसा लगा कि ये सारे, बट आपका ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें और अच्छे तरीके से कुछ रिजल्ट आ सकते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है सामने, ऐसा जब आपको लगता है तो वो एक आपका विचार हो गया, वो विचार आपका खुद का है। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि रिसर्च में ये जो है ना कंट्रीब्यूशन, और ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो विचार अभी खुद का आपका है, जो किसी ने शायद विचार उस बारे में नहीं किया है ना, या हो सकता है बहुत सारे लोग सोच रहे हैं बट वो लिख नहीं पाए। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, जो अच्छी तरीके से लिख पाता है, सोच तो बहुत सारे लोग सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ कि चांद पे ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है ना। अभी आपने रिसेंटली न्यूज में इस तरीके की न्यूज आ रही है कि चाइना जो है, ये चाइना इस पे काम कर रहा है कि एक आर्टिफिशियल सन बनाया जाए, आर्टिफिशियल मून बनाया जाए, है ना। तो आर्टिफिशियल सन बनाने के लिए उसको जो लगता है, उन्होंने इस तरीके से टेक्नोलॉजी पे काम किया है, और वो मतलब एक बड़ा सा कोई स्पेयर होगा जो रात में इल्यूमिनेट होगा, है ना, और उसको उन्होंने सन नाम दे रहे, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं ताकि रात में भी पूरा दिन जैसा प्रकाश रहे। अब ये एक पर्टिकुलर आइडिया है, जो आइडिया जिसी ने मतलब कैच कर लिया वो उसके ऊपर काम कर सकता है। और चाइनीज प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो काफी इनोवेटिव होते हैं, क्योंकि वो कुछ अलग सोचते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं वो सस्ते भी आते हैं, बट इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो एक मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजी होती है कि वो कॉमन मैन को एकदम इजीली एक्सेसिबल हो, ज्यादा उसमें मेहनत ना लगे यूज करने के लिए, कम खर्चे में भी हो, और जिससे आपका काम आसानी से बन जाए। चल लेके आएंगे। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज म्यूट। ओके, सो ये जो टेक्नोलॉजी इस तरीके से काम करती है ना, तो ये एक थोड़ा सा इनोवेटिव साइड हो जाता है। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जब हमारे इंडियन फेस्टिवल आते हैं तो चाइनीज प्रोडक्ट देखे हुए, और लोग ये भी बोलते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट का कोई मतलब गारंटी नहीं होता, लेकिन कॉस्ट में अगर देखा जाए तो वो अलग तरीके से। बट आप थोड़ा सा उसके ऊपर विचार करें कि इनका उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, बट इनोवेटिवनेस, ये जो इनोवेशंस होते हैं, आप इसके बारे में जरूर विचार करें कि इन्होंने क्या चेंज ऐसा कर दिया कि वो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, है ना। तो इस तरीके से जब आप सोचते हैं तो वो एक आपका खुद का विचार हो गया। लेकिन आप जब उसको लिखने जाएंगे तो हो सकता है कि एक बहुत अच्छा काम आपने किया, बट आप उसको अच्छी तरीके से लिख नहीं पाए,
जिसकी वजह से लोगों तक नहीं पहुंचा या उसको जस्टिस नहीं मिला। एक काम, बहुत अच्छा रिसर्च आपने किया, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटेशन आपने किया, लेकिन अगर आप उसको लिख नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से तो वो कहीं सिलेक्ट नहीं होगा, कहीं पब्लिश नहीं होगा, लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो आपका काम जो है किया हुआ वो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचेगा। एंड दिस इज अ वेरी सैड सिचुएशन। मतलब ये बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होगी कि आपने एक बहुत ही क्वालिटी रिसर्च किया लेकिन आप उसको लिख नहीं पाए और लोगों तक नहीं पहुंच पाए। So in order to avoid that, what we have to do is we need to get that knack of writing a good paper, a thesis, a report or a project report kind of the things. तो हमें कुछ चीजें उसके लिए समझनी होगी कि ये किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से आप अच्छा बना सकते हैं। So whatever scientists do or observe, everything they come to know or to hypothesize is mediated to the language. So language is very important. How you are writing. और अगर आप पूरे जमाने भर का मतलब पूरे ग्लोब का अगर पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा मतलब जो ग्लोब है, हमारा वर्ल्ड है, ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। अगर आप अमेरिका एक अलग पार्ट हो गया, यूरोप एक अलग पार्ट हो गया, एशिया एक अलग पार्ट है। हर जगह की एक एक खासियत है। जिस तरीके से लोग लिखते हैं, का स्टाइल जो है, वो लिखने का स्टाइल ये रीजन वाइज चेंज होते जाता है। अमेरिकन इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा अलग एक्सेंट में होता है, यूरोप के लोग थोड़ा सा अलग ये करते हैं, और वो जिस तरीके से वो मतलब सोचते हैं उस तरीके से वो लिखेंगे। और हमारे कॉमन इसमें जैसे लोग बोलते हैं कि वेर we lack in because we think in some different language, we think and write in some different language. बहुत बार ऐसा होता है, डोंट टेक इट वेरी ऑन द अदर वाइज, बट होता यह है कि हम सोचते हैं, हम हमारी जो मातृभाषा है, जो जिस बारे में हम शायद मराठी में, हिंदी में शायद कुछ सोचते हैं और जब लिखने जाते हैं तो शायद कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो पढ़ता है उसको लगता है कि अच्छे भाषा में नहीं लिखा हुआ, वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। तो लैंग्वेज के ऊपर हमें काफी मेहनत लेनी है, पहली चीज। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा सेक्शन अपने प्रेजेंटेशन में आज रहेगा जिसमें मैं वेरी क्विकली इसके ऊपर टच करना चाहूंगा। देन द राइटिंग ऑफ एन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग जस्ट इंपॉर्टेंट एज द रिसर्च इटसेल्फ। तो मैंने अभी आपको बोला कि जिस तरीके से आप जितनी मेहनत आप रिसर्च या कोई नया प्रोजेक्ट या नया इन्वेंशन के ऊपर करेंगे, उतनी मेहनत आपको लिखने के ऊपर भी करनी है। So writing helps you to learn. Writing is not simply a task to be done once research or the preparation is completed. Can be integral part of the work process. तो मैं हमेशा, जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स थे, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट में भी काफ़ी बच्चे मेरे अंडर हुए हैं। 7 रिसर्च स्कॉलर्स हैव कंप्लीटेड पीएचडी अंडर मी। मैं सबको यही बोलता हूँ कि जो आप लिखने का काम करते हो वो सबसे आखिरी में ना करें। लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि हम पहले रिसर्च वर्क कर लेंगे और उसके बाद में हम हमारा पेपर या थीसिस लिखना चालू करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जिस दिन से आपने कोई काम चालू किया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप फाइनल ईयर में हो, स्टूडेंट हो आप, ठीक है, फाइनल ईयर पे प्रोजेक्ट पे आपने काम चालू किया, जिस दिन आपने वो प्रोजेक्ट टाइटल या टॉपिक सिलेक्ट किया उसी दिन से आपने कुछ ना कुछ तो हर रोज वीकली लिखना चाहिए और उसका कंपाइलेशन होना चाहिए, ताकि जब सबसे आखिर में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखेंगे या आपका पेपर आप लिखेंगे, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, आपके पास में सब मैटर रेडी होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि सब होने के बाद में मैं लिखना चालू करता हूं, काफी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये प्रोसेस हैंड इन हैंड चलनी चाहिए। जैसे आप कुछ करते जा रहे हो, कोई रिजल्ट आपको मिला, आप उसको पेन डाउन करो, लिखते जाओ, है ना? तो इस तरीके से हमें ये करना है पूरी प्रोसेस। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों तक पहुंच रहा है ना? कोई कंफर्म करेगा? फाले सर, यस सर, यस सर, आ रही। ठीक चल रहा है ना? हाँ सर। सर बस इसको जो प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंटेशन मोड में अगर हो जाए तो। एक्चुअली फुल स्क्रीन करूंगा मैं। अगर फुल स्क्रीन करने जाता हूँ ना तो वो स्लो हो जाता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। करके देखता हूँ मैं, ठीक है? फुल स्क्रीन में क्या हो जाता है कि पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अभी आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके ओके। सो वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाई यू वांट टू पब्लिश योर रिसर्च। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है हमारे लिए कि हम पेपर हमारा क्यों पब्लिश कर रहे हैं। क्या वो करने से मुझे पैसे मिलेंगे? क्या वो करने से मुझे मार्क्स मिलेंगे? क्या वो करने से मुझे जॉब लगेगा? क्या वो करने से मुझे डिग्री मिलेगी?
ये डिपेंड करेगा आपको क्या मोटिवेशन है वो लिखने के पीछे। अगर आपको लगता है कि यू कैन मेक अ कंट्रीब्यूशन टू अ गैप इन दी करंट नॉलेज, जैसे कि मैंने कहा आपने 10-15 पेपर स्टडी किए, 10-15 पेपर स्टडी करने के बाद में आपको लगा कि यहीं कहीं तो गैप है, मतलब ये लोगों ने ऐसे किया, वो लोगों ने वैसे किया, कुछ अलग तरीके से होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, आपके विचार में रिजल्ट्स काफी इंप्रूव हो सकते हैं, है ना, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप पेपर लिख रहे हैं तो अलग बात होगी, है ना। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि पेपर आपको लिखना है, इसके बारे में जरूर पेपर लिखने से पहले विचार करें, है ना? क्योंकि उस तरीके से आपका फिर थिंकिंग स्टाइल होगा, उस तरीके से फिर आप लिखते जाएंगे, है ना। तो ये सबसे पहले आपको मेहनत इसी चीज के ऊपर, सारी जो ग्राउंड वर्क है, ये ग्राउंड वर्क के ऊपर आपको करनी है, ठीक है। सो थिंक अबाउट व्हाई यू वांट टू पब्लिश योर रिसर्च, ओके। क्वेश्चन एंड somebody is raising a hand. I will say हम सबसे आखिर में लेंगे क्वेश्चन सारे, ओके। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। सो गिव योरसेल्फ इनफ टाइम टू प्लान एंड राइट योर मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, मतलब ये मैन्युस्क्रिप्ट जैसे ये चीजें है ना, आजकल कम ही होती जाती है। पुराने जमाने में जब वेद पुराणास रहते थे तो ऋषि मुनि अपने हाथ से वो ताम्रपत्र के ऊपर या बहुत सारे अलग अलग ये रहते थे, उसके ऊपर लिखते जाते थे, श्लोक लिखते थे, कुछ अच्छी चीजें लिखते जाते थे। अभी तो हम मतलब लिखने का मतलब प्रैक्टिस ही कम हो रहा है। अब ये लॉकडाउन में तो और कम हो गया है ना। हम जो करते हैं वो टाइप करते हैं, हम जो करते हैं वो हमारे दिमाग में रहता है, इस तरीके से होता है। बट मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सबसे कि आप लिखते जाए, हर दिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ थोड़ा सा अपने हैंडराइटिंग में लिखे। इससे क्या है कि आपके जो विचार है वो विचार, मतलब आप किस तरीके से सोचते हैं, हाउ हाउ यू थिंक, यू नो, दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर राइटिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग, यू नो, गिव इनफ टाइम कि आपको क्या क्या आपके पेपर में चाहिए, वो प्लान करें, सेक्शन बनाएं कि आपको एक सेक्शन में ये लिखना है, एक सेक्शन में ये लिखना है, इसको ये सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ में इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। तो ये सारा प्लानिंग आपको करना है। ऐसे नहीं कि आपने कुछ तो डाउनलोड किया, उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और फिर लिखते जा रहे हैं और फिर उसको आपने बोले कि ये मेरा पेपर हो गया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारे अगर स्टेप्स अगर हम ये करेंगे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ जितना भी थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में ये काम किया है, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है ना। और आपको जहाँ पे पब्लिश करना है, वो कॉन्फ्रेंस बोलो या जर्नल बोलो, अप्रोप्रिएट जर्नल या कॉन्फ्रेंस आप सिलेक्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक पर्टिकुलर स्पेशल टॉपिक के ऊपर आपने काम किया और आप अप्लाई किसी दूसरे जर्नल के लिए कर रहे हो जिसका थीम या फोकस ही कुछ अलग है। वो क्या होगा, फिर उनका काम कुछ अलग है, आपका जो पेपर है उन तक पहुंचेगा, वो उसको स्टडी करेंगे, बोलेंगे कि ये तो पेपर रिजेक्टेड है क्योंकि उनके ये फोकस में ही नहीं है, ये उनके एरिया का ही नहीं है। भला हालांकि आपका काम बहुत अच्छा है, बट अगर उस तरीके से वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, आप जितनी मेहनत लेंगे वो पूरा वेस्ट जाएगा। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज मेक योर रिव्यू। आप सर्च करें पहले प्रॉपर जर्नल एंड द कॉन्फ्रेंस जहां पे भी आपको पब्लिश करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर आपको लगता है कि उसमें भी जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, उसमें भी काफी सारी फील्ड्स है, आपका स्पेशलाइजेशन उसमें क्या है, उससे रिलेटेड आप कोई जर्नल या कॉन्फ्रेंस सिलेक्ट करें, है ना। एक जनरल चीजें होती है, जनरल कॉन्फ्रेंस जिसमें एक जनरलाइज नॉमेनक्लेचर होता है, वहां पे डालेंगे तो सिलेक्ट होगा ही। बट आपको लगता है कि आपका जो एरिया है रिसर्च का, है ना, तो ये रिसर्च के पहले अपने को बहुत सारा सर्च करना होता है। तो ये सर्च वाले मोड में हमको ज्यादा एक्टिव रहना है। सबसे पहले तो हमें बहुत सारी चीजें, और बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता रहता है कि रिसर्च एक बहुत हाईफाई चीज है, एकदम से मैं कुछ नया ढूंढ लूंगा। तो डोंट बी अंडर दिस इम्प्रेशन। अगर आप 5% भी आपका खुद का इनोवेशन, 5% क्या, मैं तो ये बोलूंगा कि 1 और 2% भी अगर आप खुद का उसमें आप कुछ करते हो, दैट इज ऑल्सो रिसर्च। क्योंकि आप जब रिसर्च कर रहे हो आप दूसरों का वर्क रेफर कर रहे हो, आप जब पेपर लिखोगे आपका वर्क कोई दूसरा रेफर करेगा, तो ये साइकिल है, ये चेन है, ये चलते ही रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बट कंडीशन इज दैट
वो जो 1% मैं बोल रहा हूँ वो आपका खुद का होना चाहिए, सोच विचार आपके होने चाहिए, आपने खुद लिखा हुआ होना चाहिए, और मतलब रिजल्ट भी आपके होने चाहिए। तो ये ऐसा अगर आप करेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि रिव्यू पेपर अगर आपने लिखना है उसमें तो आप कुछ काम कर नहीं रहे हो, आपने कोई डिजाइन भी नहीं किया, आप सिर्फ रिव्यू कर रहे हो। लोगों को लगता है कि रिव्यू पेपर बहुत आसान है, 10 पेपर डाउनलोड कर लो, इसमें से लेट अस कॉपी पेस्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन अनदर सेक्शन कंबाइन इट राइट अ पेपर। इट्स नॉट लाइक दैट। उसमें भी काफी मेहनत लगता है आपको, मतलब लिखने के लिए। तो इसलिए आप अपना खुद के विचार के ऊपर ज्यादा जोर दो। स्लाइड इज चेंज। फाले सर प्लीज कंफर्म कर देना। यस सर, यस। ओके ओके। अब मैं एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। होता क्या है कि अभी आप स्टूडेंट हो, अभी जब हम एग्जाम में पेपर लिखते हैं तो हमको मार्क्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको वो पसंद आता है आपने जो लिखा हुआ, क्योंकि उसका जो सेट है, माइंड सेट है, उसमें वो फिट है कि इतने ऐसा अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और वो डिनाई नहीं कर सकते आपको। डिनाई मतलब कैसे है कि वो कोई इनजस्टिस नहीं करेंगे जानबूझ के आपको कम मार्क्स देके, क्योंकि कम मार्क मिलेंगे तो आप रिवेल में डालोगे, रिवेल में फिर से चेक होगा, तो वो जो एग्जामिनर है वो प्रॉब्लम में आ सकता है ना? तो वो भी जस्टिस ही करना चाहते हैं आपके साथ। हालांकि यहाँ पे कंडीशन बहुत सिंपल है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मार्क्स किस चीज पे मिलने वाले हैं। अगर आपको ये पता है तो जैसे 10th और 12th में क्या होता है कि जो भी एग्जामिनर होता है ना, उसको वो सेट दिया जाता है कि वन, अगर इसने ये लिखा है तो 1 मार्क मिलना चाहिए, इसने ये लिखा है इसको 5 मार्क मिलने चाहिए। तो ये जो मार्किंग गाइडलाइंस होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपको एग्जाम के पहले अगर मिल जाती है, जैसे फाइनल ईयर में आप हो तो एग्जामिनर क्या चाहता है ये अगर आपको पता चल जाए तो आप उसी तरीके से लिखोगे। हाँ, बट ये डिफिकल्ट पार्ट इसमें वही है कि आपको एग्जामिनर कौन है पता नहीं, और आपको ये भी पता नहीं कि वो चाहता क्या है, उसको किस तरीके से उसको पसंद आता है ना? तो प्रॉब्लम यही पे आता है। यहाँ पे भी आप जब पेपर लिखोगे तो पेपर लिखने के बाद में आपको ये पता नहीं कि कौन इवेल्युएट कर रहा है, किसके पास में आपका पेपर गया है ना? तो ये पेपर जब आपके पास में, जिसके पास में भी जाएगा, तो आपको ये पता नहीं है। लेकिन क्या हमें ये सब डाटा मिल सकता है कहीं से? मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करें। तो बहुत सारे जर्नल या कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि उनके वेबसाइट पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा। विल गेट दिस इंफॉर्मेशन इन द नेम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर्स, नोट्स फॉर ऑथर्स, और ऑथर गाइडलाइंस। आई थिंक अमित सहारे इज डूइंग समथिंग। अमित सहारे इज देयर, screen is being made. Hello, Fale sir. Fale sir. यस सर, Somebody is there, Mr. Amit Sahare. यस सर। कुछ तो राइटिंग हो रहा है एंड इट इज गेटिंग डिस्टर्ब। कुछ स्क्रीन पे कुछ आ गया है जिसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अमित सारे। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा वो दिखेगा नहीं कि क्या स्क्रीन पे शेयर ये हुआ है। आई थिंक सर ही लेफ्ट द मीटिंग। यू हैव टू, क्योंकि ये जो लाइंस, हेलो, यस सर। कैसे इसको ये कर सकते हैं अभी? एक सेकेंड, आई विल, इसको मैं स्टॉप शेयर करके फिर से करेंगे हम इसको ना, फिर से स्क्रीन शेयर करेंगे तो हो सकता है शायद निकल जाए। ट्राई करता हूँ। हाँ अभी शायद ये हो गया, फिर से मैं शेयर करूंगा। ठीक है, अभी ठीक है, दिख रहा है अभी? यस सर, यस सर। ओके। सो
लेट अस स्टार्ट फॉर दिस. वो थोड़ा फुल स्क्रीन कर लूं कि? यस सर, यस सर. हाँ. सो ये जो है, ये अगर आप उनके इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर्स, नोट फॉर ऑथर्स, ऑथर गाइडलाइंस. यहाँ पे ये पूरी गाइडलाइंस दी जाती है. इसको आपको स्टडी करना है सबसे पहले. ओके. ऑथर रिसोर्सेस करके बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं कॉन्फ्रेंस या जर्नल के वेबसाइट पे. तो आप जितना इसका स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा कि ये एक्सपेक्टेड क्या है आपसे, किस तरीके से लिखना है ना. अगर आप उसमें सही हो जाते हैं, आई थिंक दीपांशु इज राइटिंग समथिंग. ओके. सो ये जब आप ये करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मतलब आपसे एक्सपेक्टेड क्या है. जब आप एक्सपेक्टेड चीजों में पूरे अच्छे तरीके से लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपका पेपर सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है. सो द गाइडलाइंस इंक्लूड्स, ये गाइडलाइंस में क्या दिया जाता है कि टाइप्स ऑफ टाइटल्स दैट आर एक्सेप्टेबल. हेलो. 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 भाले सर. यस सर. सर ते सिक्युरिटी मध्ये जाऊन अनोटेशन डिसेबल करा सर, म्हणजे हे डिस्टर्बन्स नाही होणार. सिक्युरिटी नावाचं एक बटन आहे सर तिथे, ते बघितलं तिथे पण जाऊन त्याच्यामध्ये ऑप्शन नाही येते सर ते. आहे. प्रेझेंटेशन चालू झाल्यावर येते सर, डिसेबल अनोटेशन्स. सर म्हणजे बघितलं. कोणी स्क्रीनवर काही करू नाही शकणार. हेलो अमोल सर. हेलो. 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 अमोल यस सर. सर, आपकी आवाज आ रही है सर. अमोल सर. हेलो. सर ते मीटिंग मध्ये नाहीये, देशमुख सर मीटिंग मध्ये नाहीये. सर मीटिंग मध्ये आहेत ते, त्यांचं नाव दिसत आहे मला, पण त्यांची स्क्रीन शेअरिंग ऑफ झालेलं आहे. हॅलो. स्क्रीन शेअर करू का सर? हो हो सर. हा. ओके. दिसतंय आता सगळं? हो हा, सर. दिसत आहे ना. हो मला हो. वाटतं ते फुल स्क्रीन केल्यापेक्षा आपण असंच करूया, म्हणजे ते जरा व्यवस्थित राहील. ठीक आहे. ओके ओके. Okay, okay. I'll request all the participants don't write anything on the screen, okay? Because that is they print होता है तिथे. Okay, so we will get the information like types of titles that are acceptable. म्हणजे टाइटल हमें किस तरीके से लिखना है, मतलब किस तरीके के एक्सपेक्टेड टाइटल्स है ना. देन स्ट्रक्चर ऑफ पेपर, इज द रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसा लिखा है, रिजल्ट्स मतलब सेपरेट सेक्शन में है क्या, कंक्लूजन का सेक्शन है क्या. तो इस तरीके से आप कि वो गाइडलाइन में दिया जाएगा. और उसके बाद में लेआउट किस तरीके से रहना चाहिए, सेक्शंस कैसे रहने चाहिए, और आपकी इंग्लिश या लैंग्वेज किस तरीके से है, कीवर्ड्स कैसे है, रेफरेंसेस कैसे है. ये सारी चीजें आपको वो ऑथर गाइडलाइन में रहती है. हेलो. सो ये सारी चीजें जहां पे है तो आपको इसका स्टडी करना है और इसके बारे में आपको
फिर उसी तरीके से आपके पेपर में लिखना है. ओके. Next is read and analyze papers for your literature review and note how they are structured. अभी जो मैंने बोला था कि 10 पेपर आपने आपने पढ़े, डाउनलोड किए, उसका अभ्यास किया, ठीक है, और वो होने के बाद में जो है आपने उसका ये करने के बाद में नोट डाउन किया कि ये पेपर किस तरीके से लिखे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कुड क्रिएट अ टेबल, तो जैसे कि आप 10-15 पेपर, जैसे मैंने बोला कि आप उसका स्टडी कर रहे हो, तो आप नोट डाउन करें और उसका एक टेबल बनाएं कि ये साल में ये पेपर पब्लिश हुआ था, इसमें इस तरीके की फाइंडिंग लिखी गई, इसके एब्स्ट्रैक्ट में ऐसे कंटेंट थे, इसके मेथोडोलॉजी में ऐसा था, इसमें ये सॉफ्टवेयर यूज हुआ था, इसके रिजल्ट में इतना परसेंटेज ऐसा रिजल्ट था. इस तरीके से अगर आप इसका स्टडी करेंगे तो आपका एक मेजर टेबल बनता जाएगा, जो कि आप मतलब रिसर्च करते करते आपको फायदा होगा, और आखिर में जब ये होगा तो उसमें भी आपको, जब आप रिपोर्ट लिखोगे या पेपर लिखोगे तो काफी फायदा होगा. तो इसमें क्या आपको नोट डाउन करना है कि उसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, रेफरेंसेस कैसे दिए गए हैं, रिसर्च प्रॉब्लम क्या था, लेवल ऑफ इनोवेशन क्या है, मॉडल किस तरीके का यूज किया गया है, मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजें आपको उसमें समझ में आ जाएंगी. मटेरियल, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में दिया जाएगा. मेथड यूज एंड ऑपरेशन स्टेप्स क्या क्या है, किस तरीके के रिजल्ट्स मिले हैं, है ना, एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो रिजल्ट्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, इम्प्लीकेशंस फॉर इसका फ्यूचर स्कोप क्या है. इस तरीके से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, मतलब आप उसमें आपके जो 10-15 पेपर आपने लिटरेचर रिव्यू करके यूज किए हैं, उसके बारे में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो आप. ठीक है. सो ये this analysis will help you to write your literature review, because after this analysis you will be very familiar with the literature. और उसके बाद में आपको क्या करना है, identify the differences in other researchers approaches and results compared to your research. मतलब उनके अप्रोच क्या थे, उनके रिजल्ट किस तरीके से आए, आपके काम में वो कहाँ फिट होते हैं, आपके और उनके इसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है. ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, उसके ऊपर वर्क करना है. फिर उसके बाद में यू कैन नोट डाउन दी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन दी वर्क ऑफ अदर्स. ठीक है. ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, इसके ऊपर काम करना है आपको. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई व्हाट द एडिटर इज लुकिंग फॉर. जैसे कि मैंने कहा एग्जामिनर को क्या चाहिए, उस तरीके से आप भी उसके ऊपर काम कर सकते हो. आपको अगर ये पता चल जाता है तो वो कैसे मिलेगा, समटाइम्स आपको डायरेक्टली जैसे कि ऑथर रिसोर्सेज से मिलेगा, समटाइम्स आपको वो निकालना पड़ेगा इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली मतलब कैसे, कि जहाँ पे भी आपके जो जर्नल और कॉन्फ्रेंस आपने सिलेक्ट किया है, वो जर्नल और कॉन्फ्रेंस के पहले के पब्लिश पेपर आप पढ़े, 10-15 पेपर अगर आप पढ़ते हो तो आपको वो पता चलेगा कि ये पेपर किस तरीके से लिखे, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर या पहले 5-10 साल में सिलेक्ट हो चुके हैं पेपर, वो तो फिल्टर हो चुके हैं ना, वो सारे प्रोसेस से गए हैं पेपर, उनमें करेक्शन भी आए और फाइनली जाके वो पब्लिश हुए. तो आप उनका जब अभ्यास करेंगे तो यू विल कम टू नो दैट ये पेपर इस तरीके से लिखा गया था, इस पेपर में ये पॉजिटिव साइड थी. Likewise, so read as many papers as you can from your chosen journal. So this should help you to gain clearer picture of editor को क्या चाहिए, मतलब टाइप ऑफ पेपर कैसा मांगा गया है, एम क्या है, रिसर्च क्या है, रिजल्ट्स क्या है, लेंथ ऑफ पेपर क्या है, स्टाइल क्या है. ये अलग अलग तरीके से आप उसमें अभ्यास कर सकते हो, उसके बाद में लिख सकते हो. फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, then you can choose any one paper as your model paper and note down the useful phrases. For example, you can notice how your model paper is structured. How does the author begin? उनका जो पहला सेक्शन है वो लिखने का स्टाइल क्या है,
उसके बाद का सेक्शन उन्होंने किस तरीके से लिखा है, तो ये फिर उन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, पहला पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ, तो ये जब आप करते जाएंगे तो आपका जो है ना ये थिंकिंग स्टाइल डेवलप होता जाएगा। अब ये रिसर्च में ये जैसे अब पीएचडी बोला जाता है, पीएचडी क्यों बोला जाता है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी, ये फिलोसॉफी आपके अंदर जनरेट होती जाएगी। तो ये आप जितना जितना पढ़ेंगे आपका थिंकिंग स्टाइल भी वैसा वैसा बनता जाएगा। सो नोटिस हाउ योर मॉडल पेपर इज रिटन, व्हाट पॉइंट डज द ऑथर मेक इन ईच सेक्शन, उन्होंने क्या ऐसी विचार रखे हैं एक एक सेक्शन में कि जो कि खास है, जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। वो पैराग्राफ लिंकिंग कैसा है, रिजल्ट्स और डिस्कशन किस तरीके से लिखे गए हैं, हाउ डज द ऑथर प्रेजेंट द कंक्लूजन्स, ये सारी चीजें जो है ये आपको मतलब बहुत काम की चीज है, आपको इसका स्टडी करना चाहिए। और जब आप लिखेंगे तो इसमें आपको जो एक मॉडल पेपर में बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना है आपको, ये इस तरीके उसी तरीके से आपको लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बट वो किस तरीके से उन्होंने उनके वेज उनके थॉट्स पुटअप किए हैं उसके हिसाब से आपको, तो ये सारे एक्सरसाइज हमें करना है, काफी सारे मददगार साबित होंगे आपको लिखने में। देन नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, थिंक अबाउट द ऑर्डर इन विच टू राइट द वेरियस सेक्शंस। अब पेपर में कितने सेक्शन होने चाहिए, पहले कौन सा सेक्शन आना चाहिए, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा होना चाहिए, उनके बीच में लिंकिंग क्या होनी चाहिए, ये सो बाय एंड लार्ज द साइंटिफिक कम्युनिटी यू नो दे ऑलवेज प्रिफर दिस काइंड ऑफ द फ्लो। सबसे पहले होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट, एक बहुत ही शॉर्ट मे बी अ पैराग्राफ कि जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके पेपर या थीसिस के बारे में आई है। ओके तो ये क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, जो भी पेपर आप कंप्लीट करोगे उसके पहले आपको एक एब्स्ट्रैक्ट, एक रफ ड्राफ्ट आपको लिखना है, और सारा पेपर होने के बाद में उसी ड्राफ्ट को फाइनलाइज करना है। तो पहले आप लिखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है, और जैसे जैसे एक एक सेक्शन आपका फाइनलाइज होता जाएगा उसके जो रिजल्ट्स है या जो चीजें लिखी गई है वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके एब्स्ट्रैक्ट में। उसके बाद में आना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप मतलब उस टॉपिक के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, और ये आपको लिखते समय ये बिल्कुल विचार में लाना चाहिए कि ये जो लिखने का फ्लो है ना एकदम स्मूथ होना चाहिए। मतलब जैसे हम कोई नॉवेल पढ़ते जा रहे हैं, कोई कथा पढ़ते जा रहे हैं ना, तो जैसे हमको इंटरेस्ट आते जाता है एक एक लाइन के बाद में, उस तरीके का इंटरेस्ट हमें ये पढ़ने के बाद में आना चाहिए। जो भी पढ़ेगा उसमें उस तरीके का इंटरेस्ट आते जाना चाहिए, डेवलप होते जाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसको आर्ट में कन्वर्ट करना, आर्ट मतलब राइटिंग इज एन आर्ट, तो आपका डिपेंड करेगा आप किस तरीके से लिखते हो। सो इंट्रोडक्शन में आपको वो देना चाहिए कि ये टॉपिक है, इसमें ऐसा ऐसा रिसर्च हो चुका है, आई विल कम टू ईच एंड एवरी सेक्शन सेपरेटली। ओके, methodology or methods, then results, then discussion, then conclusions, then references, and then abstract final version means आखिर में abstract नहीं देना है, पहले जो abstract लिखा था उसको finalize करना है, ठीक है। और create separate files for each section, for each file write down a list of key concepts. okay, तो जब भी आप कोई काम चालू करते हो आपको एक फोल्डर बनाना चाहिए कंप्यूटर में, लैपटॉप में, और जो भी आपको पेपर है सेक्शन वाइज अलग अलग बनाते जाइए, उनकी अलग अलग फाइल बनती जाएगी, अलग अलग टेबल में आप मेंटेन कीजिए, क्योंकि बाद में इतना डाटा हो जाएगा कि आपको ही पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या आपने लिया था, है ना। सो ये सारी चीजें आपको बहुत मैटर करेगी। तो थिंक अबाउट द ऑर्डर इन विच टू राइट द वेरियस सेक्शंस एज सच। और उसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, ये थोड़े से एडेड एफर्ट्स अगर आप लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे कि चैट विद द नॉन एक्सपर्ट्स, आप किसी के साथ में भी आपका प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो जो कि आपके विषय का एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि जो एक्सपर्ट होगा उसे सारा पता होता है, वो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन जो नॉन एक्सपर्ट होता है उसको आप बोलिए कि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछो आप,
जो आपके दिमाग में आते हैं, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो जो भी आपको लगता है वो आप मेरे को पूछो। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे, आपको पहले से पता होगा कि ये इसके बारे में ये पूछा जा सकता है। आप वो क्वेश्चन नोट डाउन करो, उसका आंसर लिखने का प्रयत्न करो, देन गिव मिनी प्रेजेंटेशन टू कलीग्स। ये बहुत अच्छी तरीका होता है कि आप वो प्रेजेंटेशन से क्या होगा, आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि ये मैं जनरली सभी को रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आपका वाइवा होता है या प्रोजेक्ट वाइवा होगा या एमटेक या पीएचडी का डिफेंस होगा, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में विचार करके रखें और उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ये विजुअलाइज करें। अगर आप कुछ क्वेश्चन खुद नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन करके उनका आंसर लिखे, क्योंकि क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस उस तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर एट वंस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका दिमाग में वो थिंकिंग स्टाइल आपका चालू हो जाएगा। एकदम से नया क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कुछ सूझता नहीं टाइम पे, फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फिर जो आता है वो भी नहीं आता। ये वाइवा के लिए है ना, ये बहुत अच्छा तरीका है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए भी अगर जाते हो तो आपको पता होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, विचार करें। तो इसी तरीके से पेपर के ऊपर भी आप विचार करें कि आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका आप लिखने का प्रयत्न करें। Then decide what are your key findings are and whether you really have a contribution to make. Otherwise, you will get the comments. Usual comments क्या होते हैं कि the paper is not acceptable, no new knowledge, science और discovery is present. ये बहुत ही कॉमन कमेंट है जो आपको आएगा अगर आप थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखोगे तो इसमें क्या होता है कि आपको हमेशा जो पढ़ने वाले के एंगल से आपको लिखना है कि उसको क्या वो ढूंढ रहा है और उसका इंटरेस्ट किस तरीके से। तो आपकी जो महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स है, योर इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स, उसको आप बार बार हाईलाइट करें। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिमाइंड द authors or the readers about what are your things were। ये बार बार आप ये अलग तरीके से आप लिख सकते हो। एक पैराग्राफ में आपने लिखा, सेकंड पैराग्राफ में आपने फिर से रिमाइंड किया कि ये आपका गोल था, ये गोल से आपने चालू किया था और इस आप करेक्ट वे में हो। फिर लास्ट सेक्शन में भी आपने बोलेंगे कि यहाँ से आपको चालू करना था, फिर आपका ये आया, तो खुद ही आपको एंडोर्स करना है कि आप अलग अच्छे तरीके से गए, अच्छे तरीके से आपने लिखा। तो ये सारी चीजें होती है। आपको रिमाइंड करवाना है कि व्हाट योर रिसर्च गोल वाज, what your important findings were, and how we can demonstrate that they were true, how these findings differ from add to previous knowledge। तो बार बार आपको इस तरीके इसके बारे में विचार करना है। And for each section, think about how you can highlight your key findings. So it may help you to imagine, that the reader has asked you this question. So just imagine कि जो रीडर है वो आपको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको इसके बारे में आंसर देना है। तो आप ये क्वेश्चन लिख के रख सकते हो और हर क्वेश्चन के लिए आप 1 से 2 पैराग्राफ लिखने का प्रयत्न करें, जरूर करें। तो उससे क्या आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होते जाएगा। से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जो आपको ये पूछ रहा है कि व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व और इन्वेस्टिगेट। ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न कर रहे हो आपके पेपर में। लिखे इसके बारे में एक पेज भी आप लिख सकते हो। हाउ डिड यू सॉल्व और इन्वेस्टिगेट। आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या होगा, आप कैसे उसको मतलब रिजल्ट्स लाएंगे और कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे। फिर आप इमेजिन करेंगे कोई तो आपको पूछ रहा है कि हाउ डज योर सॉल्यूशन और इन्वेस्टिगेशन डिफर फ्रॉम प्रीवियस अप्रोच। 10-15 पेपर जो मैंने बोला था आपके विषय से रिलेटेड, आपने उसका अभ्यास किया और उसके बाद में आपने कुछ तो एक नया सॉल्यूशन लाया। तो नया सॉल्यूशन लाने के बाद में ये आपका सॉल्यूशन उनके सॉल्यूशन से डिफरेंट कैसा है। 100% तो अलग नहीं हो सकता, बट 1% भी अगर हम मान के चले तो कैसा अलग है, इसके बारे में आपको सोचना है और वो लिखना है। व्हाट डिड यू डिस्कवर, ये सारा मेहनत करने के बाद में आपको क्या मिला। हाउ डू योर फाइंडिंग्स डिफर फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी देयर इन द लिटरेचर एंड व्हाट डू दे मीन। ये सारी चीजें तो वो 10-15 लोगों ने भी की थी, तो आपने क्या उसमें अलग से किया है। तो ये सारी चीजें जब हम
उसके बारे में विचार करेंगे. So when you will be thinking on these particular lines, automatically your thought process or your philosophy will help you, to write down or to give answers to all these questions. तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप अटैकिंग मोड में हो. अटैकिंग मोड में मतलब आप खुद को क्वेश्चन पूछे कि ये क्वेश्चन मेरे को आने का है, आएगा, पूछा जाएगा, या जो रीडर है उसके दिमाग में क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखने का प्रयत्न करें. उसके बाद में जो एग्जामिनर है या रेफरीज है वो कौन होते हैं, कौन कौन आपको इवेल्युएट कर सकता है, ये अगर आपको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आप जो है ना अच्छे तरीके से लिख सकते हैं. क्योंकि आपका पेपर जाएगा, वो कोई जो इवेल्युएट करेगा उसको तो कोई पैसे मिलने वाले नहीं है. उसको अगर पैसे मिलते हैं तो वो क्या करेगा कि अच्छा है करके वो आपका पेपर सिलेक्ट कर लेगा. वो तो आपके फील्ड का डॉन आदमी है, वो तो एकदम एक्सपर्ट है आपके फील्ड में, है ना, जो इंटरेस्ट से आपका पेपर पढ़ रहा है और वो एनालाइज कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है आपके पेपर को कि ये अच्छा लिखा, ये गलत लिखा. वो नॉलेजेबल पर्सन है. आप उसको फुल नहीं बना सकते. आप उसको अलग भाषा में जिस तरीके से आप उसके साथ में कुछ अलग तरीके से डील नहीं कर सकते हो. वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है ना. तो ये पीएचडी स्टूडेंट, रिटायर्ड एक्सपर्ट्स, ये सब भी होते हैं. तो इनको आपको मतलब किस तरीके से हैप्पी रखना है, उसको तो कोई ऑब्लिगेशन है नहीं पेपर के बारे में. सो राइट इन अ वे दैट नॉन एक्सपर्ट और लेस एक्सपर्ट पर्सन कैन आल्सो अंडरस्टैंड. आपके पेपर को इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि एक्सपर्ट को भी पसंद आ जाए. ओके. और रेफरी रिपोर्ट दिए जाते हैं. जैसे कि एग्जामिनर जो होता है ना एग्जाम में, तो उसको जैसे मार्किंग स्टाइल होती है कि ये लिखा तो 2 मार्क देना है आपको, ये लिखा तो 1 मार्क देना है, ये लिखा तो 5 मार्क देने हैं. तो ये सारा उनको जैसे अगर पता है तो ये रेफरी रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, है ना, और उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो ये आपके जर्नल या कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट पे आपको मिलेंगे. फिर आपको उनको डाउनलोड करना है. आपको ये पता चलेगा कि ये लिखा तो आपको मार्क मिलेंगे. जैसे कि मान के चलिए जो भी पेपर आपने लिखा है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनर के लिए, इज द रिसर्च नॉवेल एंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेवेंस, ये क्वेश्चन है, और आपको ये पता है कि इसके ऊपर आपको मार्क मिलेंगे. तो आप क्या करेंगे, पेपर लिखते समय थोड़ा सा नॉवेल चीजें आपके इसमें डालने का प्रयत्न करेंगे और उसका रिलेवेंस आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ में लाने का प्रयत्न करेंगे. है ना? मतलब ये नहीं है कि आपने ये पेपर महाराष्ट्र के लिए लिमिट किया है. आप कहीं तो उसमें स्टैटिस्टिक्स ऐसा देंगे कि यूएस में भी इसके ऊपर काम हो चुका है, यूरोप में भी काम हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में भी काम हो चुका है, और फिर उनके रेफरेंसेस देंगे, उनका रिलेवेंट चीजें उसमें ऐड करेंगे. ऐसा करने से क्या होगा, आपके पेपर को वेटेज आएगा और वो जो मार्क्स वहां पे लिखे हैं ना वो आपको मिल जाएंगे. डज द आर्टिकल फिट द एम्स एंड स्कोप ऑफ द जर्नल, इज द पेपर रिटन ग्रामेटिकली एंड क्लियरली, इसके ऊपर मार्क्स है तो आप वो लिखने का प्रयत्न करेंगे. तो ये आपका राइटिंग स्टाइल कैसा है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, टाइटल्स अप्रोप्रिएट कंटेंट से है कि नहीं, डज द एब्स्ट्रैक्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कंटेंट्स. तो ऐसा अगर है तो आप वो लिखते समय ही ये करेंगे. आर द कंक्लूजन बॉर्न आउट ऑफ द एविडेंस और आर्गुमेंट. ये सारी चीजें हमको अगर पहले से मालूम हो तो हम उसमें लिखने का जरूर प्रयत्न करेंगे. ओके. नाउ लेट अस कम टू द मेजर पोर्शन फॉर दिस. ओके. One by one we'll go through this. Now what is the title of your paper? Title कैसा होना चाहिए, है ना? So think about this once again, these questions. कोई तो आपको ये questions पूछ रहा है, आपको उसके आंसर लिखने हैं. What have I found that will attract the attention? कुछ तो ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो टाइटल में पढ़ते बराबर सामने वाले की इच्छा होनी चाहिए कि इसमें कुछ तो नया है, मैंने पढ़ना चाहिए. जैसे कि हम बुक का देखते हैं ना, जैसे न्यूज में आता है ब्रेकिंग न्यूज, तो वो कैसा होता है कि एकदम अटेंशन चला जाता है उसके ऊपर. उस तरीके से आपके इसमें क्या नया है, अटेंशन किस तरीके से आ सकता है ना, ये आपके टाइटल में होना चाहिए. व्हाट इज न्यू, डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग अबाउट माय फाइंडिंग्स, कुछ तो इंटरेस्टिंग नया है वो आपके टाइटल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. कीवर्ड्स जो है आपके पेपर पे वो उसमें आने चाहिए. तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके के टाइटल मैंने लिखने चाहिए. ठीक है. उसके बाद में आपको एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या आना चाहिए. तो एब्स्ट्रैक्ट में जैसे कि
ऐसी चीजें आनी चाहिए जिसकी वजह से जो एडिटर होगा, जो इवेल्युएटर होगा, उसको फायदा होगा डिसीजन लेने में कि ये पेपर आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। सो एडिटर्स टू मेक अ क्विक डिसीजन ऑन वेदर द पेपर इज रिलेवेंट है कि नहीं। रेफरीज के लिए we will then judge the paper in its entirety and reader to identify quickly what the paper is about to judge, how relevant it। तो ये सारा उसको एकदम क्विकली हेल्प हो जाना चाहिए पढ़ते बराबर कि डिसीजन लेने में ये होना चाहिए। अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा तो वो आपका पेपर जो है ना वो सिलेक्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज या प्रोसेस जरूर करना चाहिए जिससे आपको हेल्प होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या है ना कि ये सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आना चाहिए। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, गैप इन द नॉलेज, मेथोडोलॉजी एंड रिजल्ट, कंक्लूजन, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, जो रिसर्च आपने किया है उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं तो आपके इसमें आना चाहिए। तो ये एब्स्ट्रैक्ट जैसे भी आप बनाते जाएंगे ना तो उसमें ये सारी चीजें आना चाहिए आपके। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, और जो गैप जैसे मैंने बोला था कि 10 लोगों ने पेपर लिखा लेकिन आपका पेपर कुछ तो नया है, ये सारी चीजें उसमें आना चाहिए। कंक्लूजन आपने क्या लिखा तो वो उसके बारे में आपको लिखना है ना, ये सारी। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है पेपर का, है ना। तो क्योंकि जो रिसर्च किया है वो आपने किया है, आप एक्सपर्ट है आपने फील्ड के, तो ये कॉन्फिडेंस जरूर रखे, अंडर एस्टिमेट ना करे खुद को, क्योंकि जो चीजें की है वो आपने बनाई है, रिसर्च आपने किया है, यू आर द मास्टर ऑफ योर वर्क। तो उसमें आपको धीरे धीरे ये चीजें पुट फॉरवर्ड करनी है आपके, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे। इंट्रोडक्शन 1 पेज का हो सकता है, 2 पेज का हो सकता है थीसिस के बारे में, अगर आप पेपर के बारे में तो 2 पैराग्राफ का भी हो सकता है। तो उसमें आपको थोड़ी थोड़ी चीजें डालनी है कि इंट्रोडक्शन में जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम क्या था, उसमें कोई सॉल्यूशन है क्या लिटरेचर में, विच सॉल्यूशन इज द बेस्ट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके लिमिटेशन क्या है, जो आप चीजें आपने किया, गैप आपने बोला कि ये है तो उसके लिमिटेशंस क्या है, व्हाट डू आई हैव टू अचीव अबाउट ऑफ दिस, इससे मुझे क्या मिलेगा जब मैं अगर काम करना चाहूंगा तो उसमें मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, हैव आई अचीव व्हाट आई सेट आउट टू डू, और मुझे वो मिला क्या, जहां से मैंने चालू किया था वहां से मेरा रिसर्च पहुंचा क्या और मुझे वो चीजें मिली क्या उसमें। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इंट्रोडक्शन में लिखनी है। जैसे कि एग्जाम्पल में देना चाहूंगा, तो ये एग्जाम्पल में जैसे एक कोई आप फंक्शन डिसाइड करें और उसके बारे में कैसे लिखना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि उसमें डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक आना चाहिए और बैकग्राउंड भी आना चाहिए, है ना, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जैसे कोई बैटरी के ऊपर कोई वर्क कर रहा है कि उसके लाइफ साइकिल के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है, तो आपने क्या देना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक, मतलब जैसे XYZ बैटरी है, उसमें इलेक्ट्रोड है, टेलीफोन बैटरी आर मेड ऑफ दिस कंपोजिट मटेरियल गोल्ड एंड सिल्वर कोटेड विद लेयर ऑफ प्लैटिनम। तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, उसका डेफिनेशन या उसका बैकग्राउंड देते जा रहे हैं, उसमें क्या नया है, स्टेट ऑफ आर्ट क्या है और प्रॉब्लम क्या रिजॉल्व करना है आपको। So the performance of the battery can be strongly affected by the number of times the battery is recharged। अब लैपटॉप की भी बैटरी होती है, आप उसको बहुत बार चार्ज करके रखो उसका क्वालिटी डिग्रेड होगा, मोबाइल भी आप दिन रात उसको चार्ज करके रखो उसकी बैटरी डिग्रेड होगी। ये जनरल चीजें है जो हमको पता है, लेकिन ये अगर आप लिखना चाहते हो तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी, तो रिसर्च प्रोग्राम हैज बीन रिसेंटली स्टार्टेड बाय द ऑथर्स, आप कोई बैटरी मैन्युफैक्चरर के साथ में ये रिसर्च कर रहे हो तो ये चीजें फिर आपको रिफ्लेक्ट करनी है। इंट्रोडक्शन ऑफ द लिटरेचर इस तरीके से आपको देना है, मतलब आप डिसाइड करें कि आपको देना क्या है, उस किस तरीके से लिखना है। ठीक है, सर्वे किस तरीके से करना है, ऑथर्स कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें किस तरीके से रखना है, एम ऑफ द प्रेजेंट वर्क क्या है, मेन रिजल्ट्स कंक्लूजन्स क्या है। तो ये इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखते जाए आपको क्या क्या चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है, और राइट हैंड साइड में उसके बारे में फिर लिखते जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, कीवर्ड्स एक लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में उसके बारे में आप लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन रेडी हो जाएगा। लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है,
सो द लिटरेचर रिव्यू में आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में देना है। तो 10 पेपर, जैसे मैंने कहा 10-15 पेपर आपने स्टडी किए, उनके बारे में आपने सब चीजें पॉइंट आउट किए। अब आपके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यूजफुल बिकॉज इट अलाउज यू टू सिस्टमेटिकली एलॉबरेट द अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अदर स्टडी। 10 लोगों के बारे में जो उन्होंने रिसर्च किया है, तो उनके बारे में आपको सिस्टमेटिकली एलॉबरेट करना है, आपको उनके अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशन। रिलेट योर न्यू फैक्ट्स एंड आइडिया, ये उनके साथ में रिलेट करना है कि जो आपने किया है उनके साथ में रिलेटेड है कि नहीं है, या आपने कुछ अलग ही लिख रहे हैं आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपके जो कमेंट्स आएंगे वो आपको मतलब फिर वो रिजेक्शन के मोड में आएगा, क्योंकि वो फिर आपको कमेंट्स किस तरीके से आएंगे, द ऑथर हैज नॉट मेड इट क्लियर व्हाई सम रेफरेंसेस आर मेंशन। आपने पेपर में रेफरेंसेस तो दे दिए, क्यों दिए इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया आपने। ऑथर्स डू नॉट सीम टू बी अवेयर ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट। मतलब हमेशा ये बोला जाता है कि पेपर अगर आप रेफर कर रहे हो तो हमेशा रिसेंट होने चाहिए। रिसेंट मतलब 2021 में है हम, कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर आप वर्क कर रहे हो तो 2020, 19, 18 के पेपर आपने रेफर करने चाहिए। आप एकदम 1990 का पेपर अगर रेफर कर रहे हो तो वो मतलब टेक्नोलॉजी तो आउटडेटेड हो गई है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। There are papers cited that are not mentioned in the paper। ये कॉमन चीजें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। फिर से हम उस मोड में आएंगे कि हम 10-12 क्वेश्चन लिखेंगे और उसके आंसर आपको लिखना है, ठीक है। ये अगर आप करेंगे तो आपका लिटरेचर रिव्यू रेडी हो जाएगा। जैसे कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सेमिनल वर्क्स ऑन माय टॉपिक। जो टॉपिक मैंने किया है उसमें कौन से काम हो चुके हैं। डू आई नीड टू मेंशन दिस, ये मुझे पेपर में लिखने हैं क्या, जरूरी है क्या। इस तरीके से आप उसमें व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड सिंस द सेमिनल वर्क्स, उसमें क्या क्या एडवांसमेंट आके गए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे वो सारे उसमें क्या क्या उसमें एडवांसमेंट होता गया। व्हाट आर द मोस्ट रिलेवेंट रिसेंट वर्क्स, रिलेवेंट है कि नहीं, रिसेंट है कि नहीं, तो आपको ये मेंशन करना है। व्हाट आर द अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है या क्या अच्छी चीजें हैं जो आप मेंशन कर सकते हो उसके बारे में, है ना। तो व्हाट गैप डू दीज लिमिटेशंस रिवील, ये सारा आपको मतलब विजुअलाइज करना है और लिखना है। अपनी भाषा में लिखते चले जाइए, 2-3 पेजेस लिखिए। ये जो क्वेश्चंस है आपका जो लिटरेचर रिव्यू ऑटोमेटिकली रेडी होता जाएगा। हाउ डज माय वर्क इंटेंड टू फिल दिस गैप, जो गैप मैंने बोला कि 10 लोगों ने रिसर्च किया, मैंने कुछ तो अलग उसमें से फाइंडिंग निकाले, है ना। तो क्या मैंने जो काम किया उससे वो गैप निकल जाएगा, क्या उसके ऊपर वो एक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपको जो है लिखते चले जाना है। दिस इज द बेस्ट स्टाइल। क्वेश्चन विजुअलाइज करें और उसके बारे में लिखते जाए। उसके बाद में आएगा मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मतलब आप किस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, किस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, आपका ब्लॉक डायग्राम क्या है, ये सारी चीजें उसमें आपको मिलेगी। ये अगर आप अच्छी तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपको क्या होगा, कमेंट्स मिलेंगे। वो कमेंट्स क्या हो सकते हैं, द मेथड्स आर नॉट एडिक्वेटली डिस्क्राइब, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया, ठीक है, वो इनकम्प्लीट है। नो डाटा ट्रीटमेंट इज शोन, स्टैटिस्टिक्स आपने नहीं दिया, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं किया, तो आपको ये कमेंट आएंगे। प्रोसीजर आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, आपने जस्टिफाई नहीं किया कि आपका रैशनल क्या है, वो प्रोसीजर आपने क्यों सिलेक्ट किया ये आपने कभी डिस्कस ही नहीं किया, कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि रिसर्च में या प्रोजेक्ट में रादर देन हाउ, व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ तो आपको मिलेगा, हाउ मतलब किस तरीके से करना है, आपके उसमें सॉफ्टवेयर है, आपके उसमें हार्डवेयर है, वो स्टैंडर्ड है, तो आप जो इनपुट देंगे उसमें आउटपुट आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, सॉफ्टवेयर में मिलेगा, हार्डवेयर में मिलेगा। बट रिसर्च में आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई, ये करना क्यों है, ये सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। ये आपको क्यों करना है, इससे क्या होगा, ये जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर बाद में क्या करना है, एक बार आपको क्लियर हो गया उसके बाद में तो आपको सॉफ्टवेयर में डिजाइन करना है, आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेथोडोलॉजी सेक्शन में फिर से आप इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप ये विजुअलाइज करें कि आपको
कोई तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको इसके आंसर लिखने हैं, ये इसके आंसर भी लिखे तो आपका मेथोडोलॉजी सेक्शन रेडी हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या है कि व्हाट हु डिड आई स्टडी, लिखते जाइए मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ, व्हाट हाइपोथेसिस वाज आई टेस्टिंग, क्या अजम्पशन मैंने लेके चला था और क्या लिखते जा रहा हूँ। वेयर डिड आई कैरी आउट दी स्टडी, ये मैंने कहाँ पे किया, लैब में किया, कोई सॉफ्टवेयर में किया, कौन से एरिया में किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। हाउ डिड आई डिजाइन माई एक्सपेरिमेंट, मैंने सैंपल जो सिलेक्ट किए वो कैसे किए। व्हाट वेरिएबल वाज आई मेजरिंग एंड व्हाई, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में लिखते जाइए, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर खुद ही मिलते जाएंगे। ठीक है। हाउ डिड आई हैंडल, हाउ ट्रीट माई मटेरियल सब्जेक्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ केयर प्रिकॉशन आई नीड टू टेक, प्रिकॉशन मुझे क्या लेनी है, ये अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसके बारे में लिखता जाऊंगा। व्हाट प्रोटोकॉल डू यू यूज फॉर कलेक्टिंग माई डेटा, हाउ डिड आई एनालाइज द डेटा, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What probability did I use to decide the significance? What references to the literature? What difficulties did I encounter? मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आए एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान, है ना, रिजल्ट लेने के दौरान, समझने के दौरान, ये सारा आप आपका जर्नी जो है ना रिसर्च का लिखते चले जाइए। हाउ डज माई मेथोडोलॉजी कंपेयर विद द प्रीवियसली रिपोर्टेड मेथड्स, क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली रिसर्च में क्लियर होती जाएगी, है ना। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। The next is, after getting for that your results. So typical complaint of referees. जैसे रिजल्ट का सेक्शन मैंने बहुत बार इवेल्युएट भी करता हूँ या देखता हूँ रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट्स का, तो वो क्या करते हैं, रिजल्ट चैप्टर का नाम रिजल्ट होता है या सेक्शन का नाम रिजल्ट होता है, उसमें डायरेक्टली 2-4 इमेजेस दी जाती है और नीचे 2-4 लाइन होती है, इन दिस वे द रिजल्ट्स आर देयर। आप ना तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो ना कुछ बता रहे हो कि वो रिजल्ट कैसे आए क्यों आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर जो आपका वेवफॉर्म है, टेबल है जिसमें आप वैल्यूज दे रहे हो, उनको डिस्कस करना है, वो क्यों आए, कैसे आए, क्या इनपुट दिया था, क्या आउटपुट आया, ये वेवफॉर्म का शेप ऐसे क्यों था, ऐसे ही क्यों आया, ये चीजें जब आप दोगे तो उसको रिजल्ट बोला जाता है। और रिजल्ट के साथ में डिस्कशन एक अलग सेक्शन होना चाहिए, अलग चैप्टर होना चाहिए या अलग सेक्शन होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जितना भी आप उसमें लिखते चले जा रहे हो वो आप उसके साथ में डिस्कस कर रहे हो। तो रिजल्ट्स के साथ में डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द रिजल्ट शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो आपका सेक्शन होगा ना रिजल्ट का सेक्शन, व्हाट डिड आई फाइंड, मैंने ऐसे क्या किया कि मुझे क्या आउटपुट मिला। व्हाट डिड आई नॉट फाइंड, मैंने ये स्टार्ट किया था, ये एक्सपेक्टेड था, ये नहीं मिला मुझे, मेरे एक्सपेरिमेंटेशन में ये मुझे नहीं मिला। ये अगर आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। व्हाट डिड आई फाइंड दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू फाइंड, मैंने स्टार्ट तो किया था बट मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ये मुझे अचानक मिल गया मेरे एक्सपेरिमेंटेशन में। तो क्यों मिला इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा आपके हाइपोथेसिस के साथ में आपके इसमें, बट वो एक आपके रिसर्च का इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। So these are the other things. Highlight those results that answer your research question. Outline secondary results. कुछ लोग क्या होते हैं ना कि कुछ अलग ही जो छोटे छोटे रिजल्ट होते हैं उनको बहुत हाईलाइट करते हैं, तो जो पढ़ने वाला होता है उसको लगता है कि यही आपकी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, वैसे नहीं होना चाहिए। मेंशन एनी रिजल्ट्स दैट कॉन्ट्राडिक्ट योर हाइपोथेसिस एंड एक्सप्लेन व्हाई दे वर अनोमलस। तो आपको सारी चीजों में पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों साइड डिस्कस करनी है और ये इसके बारे में भी आपको लिखना है। डिस्कशंस, आपको एक डिस्कशन करके अलग चैप्टर देना है या अलग सेक्शन देना है, उसमें आप डिस्कस कीजिए ये ऐसा क्यों आया, है ना। देन ये फिर से ये सारे क्वेश्चंस है, ये आप मतलब सोचे कि आपको ये पूछे गए और आपको इसका आंसर देना है। डू माई डेटा सपोर्ट व्हाट आई सेट आउट टू डेमोन्स्ट्रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द पेपर, हाउ डू माई फाइंडिंग्स कंपेयर विथ व्हाट अदर्स हैव फाउंड, हाउ कंसिस्टेंट आर दे,
लिखते चले जाइए, एक एक क्वेश्चन के बारे में आप 2-2 पैराग्राफ, 3-3 पैराग्राफ, एक एक पेज लिखते जाइए। आपका काम जो है ना बहुत आसान हो जाएगा लिखने। व्हाट इज माई पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ माई फाइंडिंग, आपको क्या लगता है, खुद के बारे में क्या लगता है, ये जो रिजल्ट आपको मिले हैं, व्हाई दोज आर देयर, आप लिखते चले जाइए। व्हाट अदर पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस आर देयर, कुछ अलग उसमें इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जो वैल्यूज आपको मिले हैं, कुछ अलग चीजें भी उसके बारे में हो सकती है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ माय स्टडी, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा है, लेकिन लिमिटेशन क्या है मेरे स्टडी का। व्हाट अदर फैक्टर्स कुड इन्फ्लुएंस माय फाइंडिंग, डू एनी ऑफ द इंटरप्रिटेशंस रिवील अ पॉसिबल फ्लॉ, कोई डिफेक्ट है क्या, कोई एरर है क्या मेरे इसमें, तो वो आप डिस्कस करते जाइए। तो ऐसे अगर हम इस तरीके का फ्लो रखेंगे तो हमारा जो कंटेंट्स है ना वो क्वालिटी कंटेंट्स बनता जाएगा, क्योंकि आप खुद ही उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो। किसी कलीग को भी, किसी फ्रेंड को भी दिखाइए, उसको उसके बारे में क्या लगता है, ये भी आप थोड़ा उससे भी डिस्कस करो, तो क्या है बहुत अच्छा फायदा आपको होगा उस विषय। ठीक है, सो रिमाइंड रीडर्स ऑफ योर गोल्स, प्रेफरेबली इन अ सिंगल सेंटेंस। उसको जितना आप सिंपल बनाते जाओगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रेफर बैक द क्वेश्चंस, प्रेडिक्शंस, हाइपोथेसिस क्या थे, वो आप बनाते जाइए और उसके बारे में लिखते चले जाइए। And refer back, your citations, your review papers, previously studied papers. Briefly restate the most important points. तो ये लिखने का स्टाइल होता है, वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। कंक्लूजन कैसे लिखना है, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा वही कंक्लूजन है, वो कॉपी पेस्ट कर लेते हो वैसे के वैसे। वैसा नहीं, कंक्लूजन कुछ अलग होता है। आपकी विचारधारा क्या है कि आप क्या कंक्लूड कर रहे हो। कोई अगर आपने थीसिस लिखा या कोई पेपर लिखा तो उसके बारे में अगर आपको एक पैराग्राफ लिखा है, इसका कंक्लूजन क्या है, ये सारी चीजें तो आपने बता दी, इससे मैं कंक्लूड क्या करूं, ये आपको उसके बारे में लिखते चले जाना है। तो ये डेफिनेटली अलग होना चाहिए। एंड द कंक्लूजन शुड बी शॉर्टेंड बाय अवॉइडिंग पेरिफेरल टॉपिक्स। बहुत सारे दुनिया भर की इधर उधर की चीजें नहीं लिखी, क्रिस्प एंड वेरी क्लियर आपको वही चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है जो आपके रिसर्च से संदर्भ में। तो उसमें कंक्लूजन में क्या क्या होना चाहिए, अ ब्रीफ रिविजिट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, जो आपके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है वो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। द फाइनल जजमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दोज फाइंडिंग्स, इंडिकेशंस ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ योर स्टडी, लिमिटेशंस क्या है उसके स्टडी के बारे में आना चाहिए। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट्स वो आपने देना चाहिए। रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर वर्क, ये इसको इस तरीके से और अच्छा बनाया जा सकता है, ये आपको रिकमेंड करना है। और कोई पॉलिसी उससे चेंज हो सकती है, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब टेक्निकल पेपर राइटिंग के बारे में है ना। उनको आपको, आप फिर डिपेंड करता है कैसे लिखते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, उसके ऊपर आपका पेपर जैसे लिखते चले जा रहे हो वो ही होगा। तो ये था अपने टेक्निकल कंटेंट्स के बारे में। उसके साथ साथ हमें है ना कुछ केयर हमारे लैंग्वेज एंड वर्ड्स के ऊपर भी लिखना है, हम किस तरीके से लिखते हैं। क्योंकि होगा ये कि जस्ट 2 or 3 बैडली कंस्ट्रक्टेड सेंटेंसेस विल मेक योर होल एफर्ट टू बी लॉस्ट। सामने वालों को ये लगेगा पहले 2-3 ही सेंटेंस में पढ़ता हूँ तो गलत है, मेहनत चली जाएगी, वो बोलेगा ये तो पेपर रिजेक्टेड। तो वैसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारी इंग्लिश, हम सोचते कुछ अलग भाषा में है, कुछ अलग वे में, लिखते कुछ अलग है। अगर मैं मराठी में सोच रहा हूँ और मराठी में लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मराठी या हिंदी में सोचता हूँ और इंग्लिश में लिखता हूँ और बाकायदा वैसे ही लिखते चले जा रहा हूँ जैसे सोच रहा हूँ, तो प्रॉब्लम आएगा। तो हमारा जो जैसे ग्रामर में बोला जाता है ना, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एकदम सटीक होना चाहिए। जैसे द रिसर्चर्स सेंट देयर मैन्युस्क्रिप्ट टू द जर्नल, अब इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये सारे इंटैक्ट है। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ ना तो गड़बड़ हो जाता है, और ये गड़बड़ हमेशा होता है।
जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, करेक्ट वे है, करेक्ट कैसे लिखा जाता है। लास्ट वीक द रिसर्चर सेंड देयर मैन्युस्क्रिप्ट टू द जर्नल फॉर द सेकंड टाइम। एकदम सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट इसमें, तो क्या हो जाता है, गड़बड़ होती जाती है। अब रॉन्ग वे में कैसा हो जाता है, द रिसर्चर्स लास्ट वीक सेंड फॉर द सेकंड टाइम टू द जर्नल देयर मैन्युस्क्रिप्ट। अब पूरा गड़बड़ हो गया, और यह गड़बड़ हमेशा होती रहती है। तो हमें जो है ना, हमारी भाषा के ऊपर, हमारे लैंग्वेज के ऊपर, हाउ वी आर राइटिंग, इसके ऊपर हमेशा मतलब हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अब जैसे कोई कोई चीजें होती है, हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे व्हाइट एंड ब्लैक, सो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को ब्लैक एंड व्हाइट ही बोलना है। व्हाइट एंड ब्लैक क्यों, व्हाइट एंड ब्लैक कोई टीवी होता है क्या, ऐसे नहीं बोला जाता है ना। आप बोलेंगे कि मेरे को 15-16 बार जाना पड़ा या 15-16% मिला, आप 16-15% ऐसा अगर बोलेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ये चीजें हमें केयरफुली ऑब्जर्व करनी है और चूज द मोस्ट रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड पुट इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। हमेशा गड़बड़ ये होती है कि हम दुनिया भर का डिस्कस करते हैं और आखिर में वो पोर्शन आता है जो काम का होता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो सबसे स्टार्टिंग में रखिए आप। और होता क्या है कि एक फुल स्टॉप, एक सेंटेंस खत्म हो गया, उसके बाद में है ना एक थोड़ा सा स्पेस होता है, दिमाग में भी हमारे थिंकिंग स्टाइल में थोड़ा सा स्पेस होता है। नेक्स्ट सेंटेंस जब हम चालू करते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पॉइंट आउट करने का और चीजें रखने का, इंपॉर्टेंट चीजें रखने का, वहीं पे वो चीजें आनी चाहिए। और जैसे होता है ना, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, तो आपकी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आप आइडेंटिफाई करें और उसको बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में रखें। ठीक है, ये कोई एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। सो पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग फॉर रिसर्चर्स इन फिजिक्स इज द न्यू फीचर नेम एक्स फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी। ये कोई सेंटेंस है। अब इसको आप अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिजिक्स नाउ हैज अ न्यू फीचर नेम एक्स फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी। Velocity can now be calculated with a new feature named x. It is particularly interesting for physicists. और x is a new feature for calculating velocity. It is particularly interesting for physicists. इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें आ गई है। x ये जो जिस पे आपने काम किया वो आ गया, वेलोसिटी, फिजिक्स, फिजिसिस्ट, ये सारी चीजें इसमें आ गई। अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो। आपने बहुत अच्छी कोई वैल्यू ढूंढ के निकाली x की, ठीक है, तो वो अगर आपको स्टार्टिंग में चाहिए तो आप वो उस तरीके से लिखिए। वेलोसिटी पे काम कर रहे हैं तो वेलोसिटी वाला सेंटेंस पहले आना चाहिए। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर, ये थोड़ा सा इंग्लिश का पार्ट हो जाता है। आई विल नॉट गो मच इनटू डिटेल फॉर दोज, बट ये बहुत काम की चीजें हैं। कहीं टाइम मिले तो इसके बारे में आप जरूर सोचें, इंग्लिश में ग्रामर के बारे में, और इंश्योर दैट देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। अदरवाइज क्या है ना, थोड़ी सी फनी चीजें हो जाती है। जैसे कि प्रोफेसर्स लाइक अनोइंग स्टूडेंट, ये कोई सेंटेंस हमने लिख दिया, ठीक है, उसमें क्लियर ही नहीं है कि वेदर प्रोफेसर इज लाइकिंग दोज अनोइंग स्टूडेंट्स और उनको मजा आता है उनको अनाय करने में, है ना। तो हम क्लियरली कुछ सिंपल चीजें लिख सकते हैं, प्रोफेसर्स लाइक टू अनाय देयर स्टूडेंट, ये ऐसा है क्या, या प्रोफेसर लाइक स्टूडेंट्स हु आर अनाइंग। हमको क्लियर होना चाहिए। आई स्पोक टू द प्रोफेसर विथ अ माइक्रोफोन, इट इज नॉट क्लियर whether using a microphone I spoke to the professor or I spoke to the professor who was holding a microphone. तो चीजें जो है ना वो जितनी क्लियर होंगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो लिखते समय हमें ये सारी चीजें लिखनी है। सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। मैंने काफी सारे चीजों के ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया है। आखिरी जो सेक्शन है ये इंग्लिश एंड ग्रामर का था। इसके बारे में कभी हम आगे और डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें लिखना है। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है इसके बारे में तो मैं ज़रूर आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो, या चैट में भी अगर आपको लिखना है तो वो आप ये कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो गए तो आप पूछ सकते हो सर। If Hello? anyone having any kind of questions, then they can unmute their mic and ask the question. कोई क्वेश्चन होगा किसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप एनी टाइम। हेलो
Yes, Am I audible, sir? yes, yes, yes. Good evening, sir. My name is Ashwin Dubey from Mechanical Engineering Department. Ashwin, okay. Sir, I basically wanted to know, suppose if we are making any project, any हाँ, technical project, हाँ, and as you said in the slide that mention your precautions. हाँ. So what precautions should be there, as in the precautions for laboratory precautions or for the project precaution or for making the project precautions? So can you please Precautions are various kinds of precautions. You know, if you are doing an experimentation. Okay, so abhi just now few days back we have come across, you know, we are going through a pandemic. Okay, and then there were the big hospitals, and a lot of issues came when that oxygen supply was not proper. Okay, so जब भी आप रिफिलिंग होता है, बाद में उसके ध्यान में आया कि जब वो रिफिलिंग हो रहा था तो प्रिकॉशन नहीं ली गई और उसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत सारा लीकेज हो गया ऑक्सीजन का। तो ये क्या है, टेक्निकल प्रिकॉशंस है ना। जब भी आप कर रहे हो तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जैसे मेकाट्रॉनिक्स है या कोई दूसरा आईसी इंजीन है या थर्मोडायनेमिक्स है, उसके ऊपर आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आपको ये हमेशा आपने डिस्कस करना चाहिए कि जो भी आप सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसमें आप जब भी कोई इक्विपमेंट को हैंडल कर रहे हो तो आप क्या केयर लेना चाहिए, ये तो है। बट जो भी आप टास्क अंडरटेक कर रहे हो, जो भी एक्सपेरिमेंटेशन आप कर रहे हो, उसके बारे में प्रिकॉशन आपने जरूर मेंशन करना चाहिए। ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं करने से क्या होगा। और उसके साथ में आपने जब आप लिख रहे हो तो ये भी आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपने लिखना है कि मतलब ये नहीं करोगे तो और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, या ये तो इक्विपमेंट के बारे में हो गया। लेकिन अगर आप कोई एनालिसिस कर रहे हो, कोई स्टैटिस्टिक्स ले रहे हो आपके एक्सपेरिमेंटेशन का, तो आपको प्रिकॉशन ये लेनी है कि इसको इसी तरीके से आपको उसका एनालिसिस करना है ना। जो डाटा आपका इंटरप्रिटेशन होना है वो इस तरीके से होना है। तो इस तरीके का भी आप प्रिकॉशंस में मेंशन कर सकते हो, केयर आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि जो एल्गोरिदम है आपके या फ्लो चार्ट में है उसको किस तरीके से डिजाइन करना है। ये भी एक तरीके का प्रिकॉशन ही होता है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो उसमें। Okay, sir. Thank you so much. कोई अदर क्वेश्चन? सर मैं आज yes 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 सर Ghankari yes speaking. sir, yes sir. Sir, I just want to know how the objectives of any research should be framed, because I heard that the objectives are very, very important for the your research journey. Yes. So how these So- should be precisely framed? Yes, I will come to this particular point as to be in your literature review, because your literature review will decide and introduction will decide what are your objectives are. आपको करना क्या है exactly, आपको ये बहुत important होता है। अब आपका objective मतलब ये है कि आप ये भी कर ले वो भी कर ले। और रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च इज जस्ट लाइक एंटरिंग इनटू जंगल। आपको पता ही नहीं आपका कहाँ है, और अगर आपको पता है तो वो रिसर्च है नहीं। समझ में आ रही मैं क्या चीज बोल रहा हूँ? एक चीज ये होती है कि रिसर्च में बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं हो सकती। आई विल लाइक टू गिव मेक इट अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोजेक्ट, ओके, यू नो, डिसर्टेशन एंड अ थीसिस। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आपको ये पता है कि आपको ये चीजें अचीव करनी है इसके साथ में, इतने परसेंटेज के साथ में, तो मैं बोलूंगा कि वो प्रोजेक्ट है जिसमें आपको इनपुट क्या देना है वो पता है और आउटपुट क्या आएगा वो पता है। ओके, डिसर्टेशन क्या होता है कि जब पीजी में जब जाते हैं तो आपको इनपुट क्या देने ये जहां तक है पता है, लेकिन आपको आउटपुट के बारे में उतना ज्यादा क्लियर पता नहीं है। तो आपके ऑब्जेक्टिव उतने क्लियर नहीं है। पता जरूर ये है कि इससे ऐसा हो सकता है, कुछ तो नई चीज लाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इससे एक एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो में क्या आउटपुट आएगा, तो वो एक थोड़ा सा इनोवेटिवनेस हो जाता है ना। तो ऑब्जेक्टिव उसमें थोड़े से अनक्लियर रह सकते हैं। लेकिन जब आप पीएचडी के लिए जाते हो, थीसिस लिखते हो, तो उसमें क्या है, सारा ही अनक्लियर रहता है। इनपुट क्या देना है, क्या सिलेक्ट करना है और आउटपुट क्या देना है, तो आप बहुत ज्यादा वेग फॉर्म में होते हो, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव आपको इस तरीके से पुटअप करने हैं
कि कुछ आपका जो मेजर जो चीजें हैं उसको पकड़ के रखना है और उसके साथ में आपको आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, है ना। बट आपके ऑब्जेक्टिव अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो वेरी हो सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। टाइटल एकदम से, इसलिए कोई कोई यूनिवर्सिटी में या कोई इसमें क्या होता है कि टाइटल सबसे आखिर में फ्रेम किया जाता है, क्योंकि वो आपका ऑब्जेक्टिव मतलब उस तरीके से होता है। और कुछ इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये कर रहे हो, कोई आपका रिसर्च वर्क कर रहे हो, उसमें चीज में आप ठीक है, आप हम ये भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, चलो लेके चलो, ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चलो लेके चलो, इसके भी रिजल्ट ले लो, उसके भी रिजल्ट ले लो, और आखिर में कंपाइल कर लो। तो ऑब्जेक्टिव है ना, ये इस पर्सपेक्टिव में वेरी होते जाते हैं। अगर प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि इतना परसेंट एफिशिएंसी मेरे को चाहिए, आई नीड टू अचीव दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो उसपे जो है एकदम क्रिस्प आपका वो स्पेसिफिक हो जाएगा। हालांकि रिसर्च में थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव वेरी होते हैं तो चलता है। Okay, sir. Thank you, sir. एनी अदर क्वेश्चन? Anyone having any other questions? Okay. Then now I request Vaibhav Titarmare sir, please give vote of thanks. Hello, Phale sir, I am audible. Yes, sir. So good evening, everyone. I am Vaibhav Titarmare, and I am here to present the vote of thanks for today's webinar on quality paper writing and research report on innovation. I would like to thank our guest speaker, Professor Amol Deshmukh sir, for enlightening us with their knowledge. Today's webinar was full of knowledge and interesting. It gave deep insights into the topic and also revealed some interesting facts. I am pretty sure the precise knowledge that Professor Deshmukh gives us will definitely help us in our studies and future. Once again, I would like to thank Professor Amol Deshmukh sir for taking out time from their busy schedule and enlightening us with their knowledge. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, Shirvate sir, for giving me opportunity to interact with all our colleagues, students, and the participants. Thanks to Pudbare sir for organizing this. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. Thank you so much. So now I conclude the meeting. Everyone Thanks. can log you. Thank you.